Children, today I am going to tell you how to find probability of choosing a prime number or a composite number or a perfect square or multiples, etc. from a given set of numbers. So for this I have taken one example. Say here, the question is, a box contains cards which are numbered from 10 to 50. Okay. Now a card is chosen at random. Now what is the probability that the card drawn is A, a prime number, B, a composite number, C, a perfect square, D, a multiple of 3. Okay. Now for this, first of all, we need to find total number of cards. Many students do the mistake here only. They are not able to find the total number of cards properly. तो होता क्या है बच्चे, सारा question आपका wrong हो जाता है. See, the box contain number cards which are numbered from 10 to 50. What do? You just subtract 10 from 50 and you say total number of cards as 40, which is absolutely wrong. Here total cards are not 40. See, a box contains cards numbered from 10 to 50. That means 10 number card is there in the box. So which cards are not here? There are only 9 cards which are not here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So that means how do we have to calculate the total number of cards? We have to find the total number of cards as, we have cards till 50, only first 9 cards are not there. So total cards become 41. There are 41 cards. Or what else you can do? Like you have subtracted 10 from 50 and then you can add 1 to it. Yeah, when you get 40, what you can do? 40 plus 1. This will also give you total number of cards. Okay, because we cannot forget that card number 10 is there in the box. Okay. Now, after calculating the total card, let us see how do we calculate the probability of finding a card which has a prime number on it. तो सबसे पहली मिस्टेक बच्चे आप क्या करते हो, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दी नंबर्स which have only 2 factors. Mathematically speaking, we say कि prime numbers have only 2 factors. Simply, अगर simple language में बोलें तो that means they are divisible by only 2 numbers. One is 1 and other is itself. ये सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर, एक 1 से और एक अपने आप से. तो इसमें 1 नहीं है प्राइम नंबर, ये आप भूल जाते हो. 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 से शुरू होते हैं. ठीक है, 2 जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, और किसी से डिवाइड नहीं होता. देन कम्स 3, देन कम्स 4 नहीं होता. 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. ओके, तो 4 कॉम्पोजिट नंबर है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. इज इट क्लियर? ओके, नाउ प्राइम नंबर मीन विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, ये याद रखना. अब एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, इसमें तो 1 नंबर वाला कार्ड ही नहीं है. तो कई बार ये भी बच्चे गलती करते हैं. तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन करें आप ज़रूर मेंशन किया करो कि प्राइम नंबर के कार्ड्स कौन कौन से हैं. प्राइम नंबर कार्ड्स. ठीक है, एज यू कैन सी कार्ड्स 10 से स्टार्ट है. 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर आता है 11. ठीक है, 11 के बाद 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. जितने भी इवन नंबर्स हैं, आई होप यू नो अबाउट इवन एंड ऑड. इवन नंबर्स आर दी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. तो सिर्फ एक 2 को छोड़ के, ठीक है, 2 को छोड़ के और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है. तो 11, उसके बाद 12 नहीं है, 13, फिर 14 नहीं है प्राइम नंबर, 15 भी नहीं है. क्यों? क्योंकि 15 5 से डिवाइड होता है, 1 से, 15 से, 5 से, 3 से, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. देन वी हैव 16 नहीं है, 17, देन 19, देन वी हैव 23, देन 29, क्योंकि 25 भी नहीं है, 27 भी नहीं है प्राइम. ओके,
तो इन दिस वे आप सारे पहले प्राइम नंबर्स लिख लीजिए एंड देन फाइंड द probability of finding prime number. I hope you have understood. And now B part में when they are asking what is the probability of choosing a composite number, now the numbers which are not prime they are composite, the number which are not composite they are prime. Only one को छोड़ के, one is neither prime nor composite. तो as you can see 1 तो कुछ भी नहीं है, then 2 3 आपके प्राइम नंबर हैं. तो composite numbers जो होते हैं they start from 4. ठीक है, 4 से स्टार्ट होते हैं. 4 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 8 है, देन वी हैव 10, देन वी हैव 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 भी है. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द कॉम्पोजिट नंबर. बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, अगेन आप ये मत लिखना बिकॉज यहाँ पर तो 10 से स्टार्ट है. तो यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर के कार्ड भी आप पहले मेंशन कर दो कि कॉम्पोजिट नंबर वाले कौन कौन से कार्ड्स हैं. ठीक है, जैसे 4 है, 6, 8, 10 एंड इन दिस वे यू कैन फाइंड ऑल कार्ड्स, ऑल composite numbers up to 50 and then you can write how many cards are there. Then after that you can find the probability. Okay, now C part, a perfect square. Now again परफेक्ट स्क्वायर में भी बच्चे गलती करते हैं. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर होता है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. ओके, तो नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर भी आपके 1 से शुरू हो जाते हैं. कौन कौन से नंबर है परफेक्ट स्क्वायर? 1 है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9 एंड देन 16 लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पर अगेन 10 से स्टार्ट है, तो सबसे पहला आपका जो परफेक्ट स्क्वायर वाला कार्ड होगा वो 16 होगा. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कार्ड ये आपका ना इसमें 1 होगा, ना 4 होगा, ना 9 होगा, 16 से स्टार्ट होगा. फिर 5 का स्क्वायर 25, then 6 square 36, 7 square 49. That's all, because up to 50 are here. So only 4 cards of perfect square are here. So what is the probability of finding perfect square card? It is equal to 4/41. ये ध्यान से फाइंड आउट करना है. अगर आपने ये गलत कर दिया तो चाहे आप सारी चीज़ें करेक्टली फाइंड आउट कर लो, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. Okay, and then we have multiple of 3. As you know, when we talk about multiple of any number, that would mean उसका टेबल. तो यानी multiple of 3 कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 से. multiple of 3 की बात करें तो they start from 3. ये 3, फिर then 6, then we have 9, 12, 15 and so on. तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप पहले लिखेंगे. ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट, ये ज़रूर लिखना होता है बच्चों ने, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट लिख दो, कहीं आप इसको रफ में लिखो और डायरेक्टली आप लिख दो इतने प्राइम नंबर हैं तो गड़बड़ हो जाती है. अगर आपने बाई चांस प्रोबेबिलिटी गलत भी करी है बट यू हैव रिटन दिस करेक्टली, यू मे गेट हाफ मार्क फॉर राइटिंग दिस करेक्टली, कि बच्चों को मालूम है कौन कौन से प्राइम नंबर के कार्ड्स हैं. ओके, सो मल्टीपल ऑफ 3 में भी आप लिखोगे कार्ड्स with multiple of 3. फिर आप सारे ये कार्ड्स लिख लोगे, then you will write how many cards are there and after that you will be finding its probability. Okay.